want to introduce Pastor Dr. Suresh to each one of you. I heard about him for the first time when one of our families went to Israel and came. And they said we had a very good pastor teaching us in Israel. He is a scholar of the Word of God. He knows what he speaks. And then they gave me his name, so I just Googled it up. So I could see some of his beautiful explanations of the historical things up there. I've never been there, but I've been preaching about it for years together. But one day, probably we, as a church, we may go there and see that beautiful land that our Jesus walked. That's a blessing. From that day onwards, I'm following Dr. Suresh, and he's got bilingual preachings. He's got Sinhala teaching. He's got Tamil teaching, and some of his preachings are in English as well. He runs a beautiful Bible college in Sri Lanka, and he and his wife and his daughter are visiting us. And please, sir, would you please come up and deliver God's word? Please, can we all stand up as an honor? Put your hands together for the man of God. Thank you. You may be seated. So we'll have a couple of translations. We'll have Hindi translation up on the stage. We'll have Tamil, Sinhala, Malayalam off stage. So if you want to hear in any language, pick up your own earphones and hear along. Well, before I start, I would want Misha to come up and sing a song. And as Pastor said, when people invite me and introduce me, they introduce me in diverse ways, you know. But the one that I like is about me having an attachment with Israel. I love it because I call Sri Lanka my motherland and Israel my fatherland. So my daughter is going to come and sing a song which perhaps you might know. It's in Hebrew. It's a Hebrew song which means great is our God. Gadol Adonai, great is the Lord. Come on up.
Glory to God. Great is the Lord and greatly to be praised. Well, when I came this morning, I had plans to preach from the book of Habakkuk. जब आज सवेरे के समय जब यहाँ पर मैं पहुंचा, मेरा इच्छा ये था कि मैं हबक्कुक की पुस्तक से आपके सामने प्रचार करूं। But when I came here, I had an itch and a nudge to preach something else, and I believe it to be from the Holy Spirit. और यहाँ बैठने के बाद मेरे दिल में और कुछ प्रेरणा हुई और मैं उस भाग में विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ वो हो रहा है। At the end of the day, it's the prerogative of the Holy Spirit to speak to us. और दिन में जो है आखिरकार जो है मुख्य विषय ये है कि जो पवित्र आत्मा हमसे बात करना चाहता है उसी को हम प्रेरणा दें। I come from Sri Lanka. मैं श्रीलंका से आता हूँ My name is Suresh Ramachandran. और मेरा नाम है सुरेश रामचंद्रन। Now that tells that I came from a Hindu background. और वो ये बताता है कि मैं एक हिंदू परिवार से हूँ I was not just a Hindu, but I was a Hindu priest. और मैं सिर्फ साधारण हिंदू व्यक्ति नहीं था बल्कि वहाँ का एक याजक था। Christianity was taboo to us. और वहाँ पे मसीही का रास्ता जो था बहुत ही एकदम अजीब सा एकदम अलग सा रास्ता था। We were taught to hate Jesus to the extent where we were not allowed to pronounce even his name. और जो है हमें हमेशा सिखाया गया कि यीशु मसीह के नाम को जो है कभी नहीं पुकारना है और उसके खिलाफ रहना है हमेशा। And we were taught to hate Christians. और मसीही लोग से जो है एक द्वेष करने के लिए हमेशा हमें सिखाया गया। My parents are from India. और मेरे माता पिता जो है इंडिया से है। But they were coming to Sri Lanka on and off, and we happened to be born in Sri Lanka, so we consider ourselves Sri Lankans. और वो जो है श्रीलंका के प्रदेश में आया जाया करते थे और हम वहाँ पे जन्म लिए इसलिए हम श्रीलंकन कहलाए जाते हैं। One day in 1979, एक बार जो है 1979 में a pastor from the Assemblies of God Church और came वहाँ and के असेंबलीज ऑफ गॉड के पासवान he came and preached the gospel to me. और वो आकर सुसमाचार जो है हमारे तरफ जो है प्रचार करने लगे। So I'm glad that I am here preaching at an Assemblies of God church. Praise और God. आज मैं खुश हूँ कि आज एक असेंबलीज ऑफ गॉड के कलीसिया में आकर प्रचार कर रहा हूँ। My first 3 years of theological education was at the Assemblies of God Bible College in Sri Lanka. और मेरे मसीह रास्ता में जो है सेवकाई में जो शुरुआत के 3 साल जो है मैं असेंबलीज ऑफ गॉड के कलीसिया के से जुड़ा हुआ था। When that person preached the gospel to me, जब वो व्यक्ति ने जो सुसमाचार मुझसे बांटा, he said something very different to me and was very naive. और उन्होंने कुछ अलग सा ही चीज जो है मुझसे बांटा। Because we Hindus had 330 million gods. और हम हिंदू लोग जो है हमारे यहाँ 330 मिलियन जो है परमेश्वर लोग थे। Every one of them was a hero. और सभी लोग जो है वहाँ पे एक हीरो के समान थे। And this person says they only have one God. और यहाँ पर यही व्यक्ति कहता है कि सिर्फ हमारे पास एक ही भगवान है। And that one God incarnated as a man only once. और वो परमेश्वर जो है एक व्यक्ति के रूप में सिर्फ एक ही बार दुनिया में आए। Only to get killed by people. और फिर वो मारे गए लोगों के हाथों से। I mean, am I going to give up 330 million heroes to embrace this God who could not even protect himself? तो मैं क्या वो 33 करोड़ जो है भगवान को छोड़कर जो है ये एक परमेश्वर के पीछे होने वाला हूँ? But that very message spoke to me that night, and I ended up not being able to sleep. But thinking, is it true? Is it true that he says that his God became a man? और वो संदेश ने मुझसे इस प्रकार बात किया कि मुझे रात को नींद नहीं आई और मैं ये बार बार सोचने लगा कि ये क्या सच है कि वो व्यक्ति मेले मारे गए। And the next morning, by next morning, I wanted this Jesus. और दूसरे सवेरे को ही मुझे मसीह की जरूरत थी। Then the pastor came. और वो पासवान फिर आए। He helped me pray the sinner's prayer. और उन्होंने जो है वो पापियों के लिए जो प्रार्थना होती है वो प्रार्थना करने में मुझे मदद किया। Subsequent to which he said, "You now are a Christian." और उन्होंने मुझसे कहा कि इसके बावजूद आप जो है एक मसीही हो गए हो। I was like, "Is that all? और मैंने पूछा सिर्फ इतना ही है? No formalities, no ceremonies, nothing?" और कोई सेरेमनी या कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है मसीह होने के लिए? I mean, isn't there something where you undo my Hindu thing and make me a Christian? क्या ऐसा कोई चीज नहीं है कि मैं जो हिंदुत्व से जो है बाहर निकलूं और उसके बाद मैं एक मसीह बनूं? I went back home. और मैं वापस घर गया I had to do 2 pujas every day. और मुझे जो है दिन में 2 पूजा करने थे।
And I didn't know how to pray to Jesus. और मुझे ये नहीं पता था कि मैं यीशु मसीह से किस प्रकार प्रार्थना करूं। Never been to a church, never seen Christians pray, never seen a Bible. कभी कलीसिया में नहीं गया हूं, कभी मसीह लोगों से मिला नहीं हूं, कभी परमेश्वर के वचन को देखा नहीं हूं। So I went into the puja place and I said, Jesus, I don't know whether you can hear me, but if you can, there is something that I got to tell you. और वो पूजा पाठ के स्थल में मैं गया और वहां पे मैं कहा कि यीशु मसीह अगर आप एक हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। I said, Jesus, I don't have your idol, I don't have your picture, I don't even know how you look like. यीशु मसीह मेरे सामने कोई मूर्ति नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता आप किस प्रकार दिखते हो। And I don't know the mantras to chant for you. और मेरे पास ऐसे कोई मंत्र भी नहीं है जो मैं आपके सामने पूजा पाठ करूं। I will continue to chant the mantras and offer these pujas. मैं जो है अपने जो भी मंत्र मुझे पता है मैं उसको जो है कहकर अपनी पूजा पाठ करता था। But since you are God, please accept these unto yourselves. और मैंने कहा कि आप एक परमेश्वर होने के नाते जो है ये पूजा पाठ को स्वीकार कीजिए। And I told all these gods, excuse me, these are no longer for you. This is for somebody else. और उसके बाद मैंने जो है वहां पे लगाए हुए सारे चित्रों को देखकर कहा कि ये जो पूजा मैं कर रहा हूँ ये आपके लिए नहीं लेकिन ये मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ। I think I was the only one in history to have worshipped Jesus through a Hindu means. और मैं ऐसा ही एक व्यक्ति हो सकता हूँ दुनिया में जो यीशु मसीह को जो है पूजा पाठ के तौर पर जो है आराधना कर रहा था। A week later, I went to where I got saved, and for the first time in my life, on a Saturday morning, I was taken to a church. और जो है उद्धार पाने के बाद जो है पहली बार एक शनिवार के सुबह के समय जो है मैं कलीसिया में मुझे लेके गया। And I went to this Christian temple, and I got a shock. और मैं ये मसीह मंदिर में जाकर बहुत ही चौंकन हुआ। The temple was boring. No idols, no statues, no grandeur, just a hall with a few pews. I mean, वो कलीसिया जो है बहुत ही बोरिंग लग रहा था क्योंकि सिर्फ थोड़े कुर्सी थे और थोड़े लोग थे और कोई चित्र या कुछ भी नहीं था। and people were wearing shoes and slippers inside the Christian temple. और सभी लोग जो है जूते पहनकर जो है कलीसिया में घुस रहे थे। And then the pastor told me to come and sit in the front. It was a fasting and prayer meeting. वो उपवास और प्रार्थना का समय था और पासवान जी ने मुझसे कहा कि आप आगे आकर बैठ जाइए। It was like all magic and a carnival to me, first time in a church. Never seen a church, never been to a church, never had any encounters with Christians. So it was, mixed feeling. Woo. ये सब मुझे एक चमत्कार लग रहा था क्योंकि मैं कभी एक कलीसिया में नहीं गया और कभी मसीह लोगों को नहीं देखा। ये पहला एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। They started to sing and to praise God. और वो लोग जो है गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करने लगे। I didn't know how to praise God. और मुझे ये नहीं पता था कि मैं किस प्रकार स्तुति करूं। And one word was repeated by people, and that was hallelujah. और लोग जो है एक शब्द को बार-बार दोहरा रहे थे, वो था हालेलुया। Near my village, there is a place called Hallelujah. So I thought they are pronouncing the adjacent city of my village. So I also said Hallelujah, Hallelujah. और मैं जो है मैं जहाँ रहता था उसके पास के एक जो है छोटे से गांव का नाम था हालेलुया और मैं उसको बार-बार पुकार रहा था ये सोचकर कि वो लोग वो उस गांव को पुकार रहे हैं। सिंहला काटते था ना नोरती ने Hallelujah ये एक। Then all of a sudden I started to feel like a fire come on to me and I started to speak something else. और अचानक से जो है मेरे अंदर एक आग के समान एक महसूस होने लगा और मैं अन्य भाषाओं में बात करने लगा। I had never heard about speaking in tongues. और मैंने कभी अन्य भाषाओं में बात करने के बारे में सुना भी नहीं था। I didn't know about the Father, Son and the Holy Spirit. मैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानता था। But I started speaking in tongues. लेकिन मैं अन्य भाषा में बात करने लगा। I thought since Jesus is powerful, He has given me the Christian mantras और without me having to learn. मैं ये सोचने लगा कि यीशु मसीह बहुत ही सामर्थ्यवान परमेश्वर है इसलिए उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया है मसीह लोग का मंत्र। Now later on in my life, my dear friends, God took me to England, America, where I studied in universities, where scholars tried to come and convince me that speaking in tongues is no longer there. और उसके बाद में जो है विदेश राज्यों में जाने लगा और वहाँ के अच्छे अच्छे पंडित लोग मुझसे कहने लगे कि अन्य भाषा बोलना आज के जमाने में वो वैलिड नहीं है। They had homiletical, hermeneutical, exegetical, theological, philosophical explanation as to
why and how it is wrong for somebody to speak in tongues. और उनके पास कहने के लिए बहुत सारे थियोलॉजी की चीजें थे जिससे ये वो साबित करना चाहते थे कि अन्य भाषाओं में बात करना आज के समय में गलत है. But I praise God that I still remain a full gospel evangelistic Pentecostal tongue speaking Christian, and I'm happy about it. लेकिन मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये परमेश्वर के सुसमाचार को पूरी तरह से आज्ञा पालन करके मैं आज भी अन्य भाषाओं में परमेश्वर की आराधना करता My हूँ. dear friends, and my advanced wishes for a wonderful Christmas to you. और मैं जो है पहले ही आपको जो है क्रिसमस की जो है मुबारक देना चाहता हूँ. Turn with me to 1 Timothy chapter 6, and may I read just one verse, verse 6. 1 Timothy chapter 6, verse 6. हम पहले तिमोथियुस का पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 6वां वाक्य देखेंगे. But godliness with contentment is great gain. पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है. My dear friends, this is not just a statement, but this is a conviction. लेकिन ये सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं, लेकिन ये हमारे मन में जो है कन्विक्ट करने वाली बात है. The one who utters this conviction happened to be the Apostle Paul. और ये लिखने वाला व्यक्ति है अपोस्तल पौल. The Apostle Paul was a rich man by birth. और वहां पे हम देख सकते हैं कि प्रेरित पौल जो है वो जन्मी बहुत ही एक अमीर व्यक्ति थे. He was an elite personality. उस समय के जो है एकदम ऊंचे स्तर पर रहने वाले एक परिवार का एक व्यक्ति था. He was multilingual. वो जो है अन्य भाषाओं में जो है बात कर सकता, संपर्क कर सकता था. Born to a Hebrew family of Pharisees, he spoke Hebrew, which was his first mother tongue. वो इब्रानियों के परिवार में जन्म लेने के कारण वो इब्रानी भाषा को जो है अच्छी तरह से बोल सकता था. And he was very conversant with Aramaic, which was the spoken language of the Jews in the first century. और उस समय के यहूदी लोग के बात करने वाली, संपर्क करने वाली भाषा जो अरमाइक है, उसको भी अच्छी तरह से वो बोल सकता था. When we look at his letters, we marvel at his Greek. He was a Greek scholar. Greek was the international language in those days. और उस समय का जो है अंतर्राष्ट्रीय जो भाषा था ग्रीक, वो जो है उसके चिट्ठियों से हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं. And by being a Roman citizen, he was very well educated in Latin. और उस समय का जो है एक रोमी एक सिटीजन होने के नाते वो लैटिन भी अच्छी तरह से बोल सकता था. And his university education came from Alexandria in Egypt, so he was well versed in calligraphy too. और उन्होंने जो है अपनी यूनिवर्सिटी जो है अलेक्जेंड्रिया से किया था, तो वहां पे भी वो अच्छे तरीके से जो है मशहूर थे. On top of being multilingual, he was a scholar, studied under Gamaliel, who was the grandson of a very famous rabbi called Hillel. और भिन्न भिन्न भाषा को बोलने के बावजूद उसके अलावा जो है उन्होंने अच्छी तरह से जो है गमालियल के जो है साथ रहकर अच्छा शिक्षण लिया. Historically, he was a very wonderful sportsman. और इतिहास के तौर पर देखा जाए तो वो अच्छा एक स्पोर्ट्समैन भी था. Basically, he was a flawless man endowed with virtually everything that a man could have had. एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है, पौल एक ऐसा व्यक्ति था जो एक ऑलराउंडर था. वो सभी जगह पे जो एक व्यक्ति पसंद कर सकता है वो सारा गुण उसके अंदर था. And then came Jesus into his life. और उसके बाद यीशु मसीह उसके जीवन में प्रवेश करते हैं. And when he found Jesus, you know what he did? और जब उन्होंने यीशु मसीह से जो है संपर्क करना शुरू किया तो उसने क्या किया? He counted every one of those things as nothing. और वो सारा चीज जो उसके पास था, जो एक व्यक्ति चाहता था, वो सारे चीज को उसने ना के बराबर समझना कोशिश किया. Jesus became everything to him. उसके बाद यीशु मसीह उसके लिए सब कुछ हो गए. And then now he was writing to one of his assistants, his spiritual sons called Timothy. और अब जो है अपने एक आत्मिक बेटे के समान एक तिमुथी को जो है वो चिट्ठी लिख रहा है. Contextually, if you read the book of 1 Timothy, you'll see Paul talking about these people who are trying to fill people's minds with unnecessary worldly things. और ये तिमुथी की पुस्तक के शुरुआत के भाग में अगर हम देखेंगे तो वो ऐसे लोगों के बारे में बातचीत कर रहा है जो लोगों के मन में जो है गलत चीजें और अनावश्यक चीजों को जो है जो भर रहा है लोगों के अंदर. And says godliness with contentment is great gain. और उसके बाद वो ये बात कहता है कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है. If you look at the Greek in which Paul writes, और जो ग्रीक भाषा में ये चिट्ठी लिखा गया है उसमें अगर हम देखें तो the word gain there is a business term that he uses. और वहां पे कमाई जो शब्द है वो बिजनेस के तौर पर जो है उपयोगित करने वाली एक शब्द है.
It means profit. उसका मतलब यह है कि फायदा, He is all for profit making. और वो सब फायदे के तौर पर उसको जो है दर्शाता है। Why do you do business? I mean, you do business to earn profit. आप व्यापार क्यों करते हो? प्रॉफिट को पाने के लिए, फायदे को पाने के लिए। And Paul teaches how could Christians gain profit. और उसके बाद जो है पौलुस ये तक दिखाना चाहता है कि मसीह लोग किस प्रकार फायदा कर सकते हैं या फिर प्रॉफिट कर सकते हैं। Godliness with contentment. संतोष सहित भक्ति के द्वारा। So today I'm going to speak about godliness and contentment. और मैं यहाँ पर आपको भक्ति और उसका जो है संतुष्टता के बारे में बताना चाहता First, हूँ। let me talk about contentment. और पहली बात जो है आपको संतुष्टता के बारे में सिखाता हूँ। What is contentment, my dear संतुष्ट friends? रहने का मतलब क्या है? Satisfaction of what you already have. जो आपके हाथ में है उससे आप संतुष्ट रहते हो। Paul wrote to 7 churches. पौलुस ने जो है कई कलीसिया को जो है चिट्ठी लिखा। Of the 7 churches, the most poorest, struggling church was the church at Philippi. हम वचन में जो है कई कलीसिया को चिट्ठी लिखते हुए हम देख सकते हैं, और हम उसमें से सबसे गरीब कलीसिया को जो है फिलिपी को देखते हैं। Yes, it was a European church, but they were very poor. वो यूरोपियन कलीसिया जरूर थे, लेकिन वो बहुत ही गरीब भी थे। But they were a lovely people. लेकिन वो बहुत ही प्यारे लोग भी थे। And the biblical scholars call Paul's letter to the Philippians the love letter of Paul. और वहां पे जब वो फिलिपियों को जो है चिट्ठी लिखता है तो वो उसके प्रेम कथा के या प्रेम के समान, चिट्ठी के समान, लव लेटर के समान लिखता है। In chapter 4 and verse 4, Paul says, rejoice in the Lord always. And I say again, rejoice. और 14 अध्याय उसके 4 वाक्य में इस प्रकार लिखता है कि आप हमेशा आनंदित रहो, और फिर से मैं कहता हूं कि तुम आनंदित रहो। Now, if he had told that to Ephesians or Corinthians, it would have meant something totally different. अगर वो एफिसियों या फिर कुरिन्थियों कलीसिया को लिखता था तो वो कुछ अलग दिशा में चला जाता। The Ephesians were very rich and very educated. और एफिसी लोग जो थे वो अच्छी तरह से पढ़ाई करने वाले और अच्छे अमीर लोगों भी थे। The Corinthians were illiterate or semi-illiterate but very rich. और कुरिन्थियों की जो कलीसिया थी वो लोग जो है थोड़े बहुत पढ़ाई किए हुए लोग थे, लेकिन वो बहुत अमीर भी लोग थे। So it would have been much more appropriate for Paul to have told either of these people, hey, rejoice in the Lord always, and I again say, rejoice. और उन दोनों कलीसिया को शायद ये बात कहना शायद उतना तत्पर्य या फिर उतना वैलिड नहीं रहता। How can you tell somebody who is struggling financially, hey, rejoice? जो अपने सांपत्तिक दौर पर जो है बहुत ही कठिनाई से जा रहा है, उसको आप कैसे कह सकते हो कि आप आनंदित रहे? Was Paul out of his mind? क्या पौल अपने दिमाग से बाहर था? It was not Paul who wrote it, although he penned it, it was the Holy Spirit. वहां पे पौलुस ने जरूर उस चीज को लिखा, लेकिन वहां पर लिखने वाला पवित्र आत्मा था। You know, there is a difference between joy and happiness. Do you know that? जॉय और खुशी के बीच में जो है, हैप्पीनेस के बीच में जो है बहुत ही अंतर है। Joy comes from within and happiness comes from without. आनंद जो है वो अंदर से आती है और जो खुशी जो है वो बाहर से मिलती है। And joy comes into our spirit and happiness comes into our soul, which has mind, will and emotions. वो आनंद जो है अपने आत्मा में आती है और जो है Mind, will and emotions. और अपने माइंड, विल और इमोशंस के साथ वो खेलती है। You know, when people go for parties, they become happy, aren't they? जब लोग पार्टियों में जाते हैं वो खुश हो जाते हैं। When people go, why do people go for movies and musical shows? To become happy, to be happy. लोग मूवीज में और ऐसे शोज को देखने के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि वो लोग खुश हो जाते हैं। Why do people drink alcohol and intoxicate themselves? Because in that they find happiness. क्योंकि लोग जो है अल्कोहल को क्यों पीते हैं? क्योंकि उसमें वो अपनी खुशी को ढूंढते हैं। When you receive lump sum of money, you are happy. जब आप बहुत सारे पैसे को देखते हो तो आप खुश हो जाते हो। And Christmas is a period of happiness where we receive gifts, and already kids are excited about their gifts that are still sitting in your garage. और ये क्रिसमस एक ऐसा एक समय है जहाँ पर सभी लोग खुश रहते हैं, और बच्चे यहाँ पर खास करके खुश होंगे जो गराज में रहने वाले वो गिफ्ट्स को देखकर, सोचकर। One can become happy through external means. एक व्यक्ति जो है कुछ चीजों से खुश हो सकता है वो बाहरी तौर के जो है चीजों को देखकर। But once that event is over, your happiness
subsides. और वो खुशी का जो है माहौल या फिर वो इवेंट खत्म होने के बाद वो व्यक्ति की खुशी वहां पर ही समाप्त हो जाती है। This is the first time in my life I'm having Hindi translation. और ये मेरी लाइफ में पहली बार जो है मैं हिंदी ट्रांसलेटर के साथ हूं। Most of the time, you know, when translators translate, I understand a little. And I sometimes know they're not saying what I'm saying. Say that, say that. कई बार जो है मुझे जो मालूम है उस भाषा में लोग मेरे साथ में ट्रांसलेट करते हैं और मैं समझता हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं। Today is the first time somebody translates in a language that I don't know anything. और आज कोई ऐसी भाषा में ट्रांसलेट कर रहा है जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। I feel like I am preaching and Shah Rukh Khan is acting a movie next to me. ऐसा लग रहा है कि मैं प्रचार कर रहा हूँ और शाहरुख खान मेरे सामने खड़े रहकर बात कर The रहे हैं। Hindi that I know is Toda Toda Malum, Kuch Kuch Hota Hai, Sanam Teri Kasam. I mean, you know, when you attend a party, you become happy. And when you are happy, you tend to forget melancholic, sad things that happen in your lives. जब आप एक पार्टी में भाग लेते हो तब आप खुश रहते हो और आपके जीवन में जो भी दुख बातें होती है उसको आप भूलने की कोशिश करते हो। But once the party is over, your happiness goes and again you are sad. और जब वो पार्टी खत्म हो जाती है और आपकी खुशी खत्म हो जाती है और आप वो पुराने जो है दुख भरे चिंताओं में वापस घुस जाते हो। What the Bible says here is be happy in the Lord. No. It doesn't say be happy in the Lord. Rejoice in the Lord. और वहां पे वचन ये नहीं कहता कि परमेश्वर में आप खुश रहो, लेकिन वहां पे ये कहता है कि आप आनंदित रहो। I want to tell you something very theological but very precarious. और मैं आपको एक थियोलॉजी की एक बात वहां पे कहना चाहूंगा। Non-Christians do not know joy. जो मसीही लोग नहीं है वो ये खुशी के बारे में नहीं जानते, वो जॉय के बारे में नहीं जानते। They don't know what joy is. वो ये नहीं जानते कि ये खुशी क्या है। They know there is something better than happiness. वो जानते हैं कि खुशी के ऊंचे स्तर पर एक और चीज है। They know the ceiling of happiness is there, but if you break the ceiling, you can go to a higher level of happiness. वो जानते हैं कि वो खुशी का जो एक सीलिंग है वो सीलिंग तक तो आप जा सकते हो, लेकिन उसके ऊपर जाओगे तो उससे भी अच्छा एक महसूस करने वाली एक चीज है। And they try to attain it through diverse means and ways. और वो उस चीज को अटेन करने के लिए भिन्न भिन्न चीजों के तौर पर जो है वो चाहते हैं कि वो उस चीज को पाए। Meditation, transcendental meditation, this, that, and the other. जो है योगा के तौर पर, मेडिटेशन के तौर पर या कोई और तौर पर जो है वो चाहते हैं कि वो सीलिंग को पार कर उसके ऊपर चले जाए। But praise God, when Jesus came to our lives, joy set in. लेकिन प्रभु की स्तुति हो कि जब हम परमेश्वर के साथ हमारा संपर्क होने लगा वो जॉय जो है हमारे अंदर प्रवेश करने लगा। And if you are a Christian, you have joy in you. अगर आप एक मसीही है तो आपके अंदर वो खुशी है। Don't say that because you are sad for reasons best known to you, that the joy has left you. और आपके जीवन में चाहे आप कोई भी हालत से गुजर रहे हो, आप उस हालत को जो है अपने वो जॉय को जो है आपसे छीनने की जो है अधिकार न दे। The antonym to sadness is happiness, not joy. और दुखी का जो है उसका विपरीत शब्द ये है कि वो है जॉय। So some of you might have financial problems and you may be sad. और आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो संपत्ति के तौर पर जो है बहुत ही जो है कठिनाई से गुजर रहे हैं और आप दुखी हो सकते हैं। Some of you may have health issues, not well, and therefore you are sad. और आप में से कुछ लोग ये भी हो सकते हैं आप जो है शारीरिक तौर पर बीमार हैं और आप आज दुखी है। Some of you may have different types of struggles in your lives और and you are sad. आपके जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के जो है कठिनाई हो सकते हैं जो आप ही जानते हो। And when you are sad, you don't have the happiness. और जब आप दुख रहते हो आपके अंदर वो खुशी नहीं रहती। But you never lose your joy. लेकिन आप अपने जॉय को कभी नहीं खोलते। So what Paul is saying in Philippians 4:4 is, और जब फिलिपियों के 4 अध्याय उसके 4 वाक्य इस प्रकार कहता है, just look into yourself and acknowledge the joy that you already have in you in Jesus. वहां पे पौलुस कहता है कि आप अपने अंदर ही देखिए और आपके अंदर जो हर्षता है उसको जो है बार-बार दोहराइए। That's why he doesn't say rejoice and I again say rejoice, but he says rejoice in the Lord always, and I say again rejoice. और वो कहता है कि वो परमेश्वर में आप हमेशा आनंदित रहे और मैं फिर से कहता हूं कि आप आनंदित रहे।
We are living in a world of dissatisfaction. हम जो है ऐसी एक दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे सभी लोग जो है डिससैटिस्फाइड You है. know, it marvels me when I look at these richest people in the world. मैं चौकन्ना हो जाता हूँ जब मैं ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों को देखता हूँ. Have they stopped earning because they have a lot of money? उन्होंने जो है अपना ही कमाई करने जो है वो रोक दिए क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे हैं. They keep on earning and earning and earning, don't they? वो जो है पैसे को कमाते और कमाते जा रहे हैं. Tata, Birla, Ambani in India, I mean, have they stopped earning? टाटा, बिरला, अंबानी और ऐसे कई लोग जो है क्या वो आज भी कमाना बंद किए हैं? Bill Gates and the Sultan of Brunei, have they stopped earning? No, they will never stop earning. क्या ऐसे बड़े बड़े लोग क्या आज भी वो कमाना बंद किए हैं? Dissatisfaction. उनके अंदर जो है असंतुष्टता जो है. Why is there sexual immorality in the world? आज जो सेक्सुअल इमोरलिटी को हम देखते हैं वो क्यों है? Dissatisfaction. क्योंकि वो असंतुष्ट है. Why court cases for land issues and other issues? Dissatisfaction. और जमीन के इश्यूज के कारण जो है आज कोर्ट केसेस क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोग जो है असंतुष्ट है. And unfortunately, dissatisfaction has entered Christianity and churches. और दुख की बात ये है कि ये असंतुष्टता जो है मसीही परिवारों में भी घुसना शुरू किया है. Christians are not just dissatisfied, they are taught to remain dissatisfied. और मसीही लोग सिर्फ असंतुष्ट नहीं है लेकिन वो सिखाए जा रहे हैं कि आप असंतुष्ट रहे. I am not against these Pentecostal slogans that we use because I myself am a Pentecostal pastor. मैं जो है ये पेंटिकॉस्टल स्लोगन्स के खिलाफ नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद एक पेंटिकॉस्टल पासवान हूँ. I am not against saying, come and be blessed. मैं ये नहीं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि आप कहते हो कि आप आइए और आशीष को पाइए. I am not against I'm not against saying, come and receive from the Lord. और मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ कि आप आइए और परमेश्वर से कुछ पाइए. I'm not against to say, more of you, Lord, more of your anointing, more of your gifts, more power, more love, more joy. No, I'm not against any of those. मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ कि और आशीष को पाए और अभिषेक को पाए और जो है परमेश्वर के सामर्थ्य को पाए. But what I see is many churches talk all the time about you need more blessing, you need more joy, you need more of this, you need more of that. लेकिन मैं ऐसे कलीसियाओं को आज के समय में देखता हूँ जो कहता है लोगों को कि आपको और अभिषेक की जरूरत है और आशीष की जरूरत है. Thereby abstractly discounting and not honoring what you already have. और मैं वो चीज को देखकर जो है दुख होता हूँ और कि आपके पास जो है उस चीज को आप आदर नहीं करते हो. Our sister sang a beautiful old hymn, Count Your Blessings. और हमारी जो है सिस्टर ने जो है अच्छे से एक गीत गाए अपने जो है आशीषों को गिनने के बारे में. When these hymns were written by saints, they enjoyed what the Lord had already given them. और ये गीत ऐसे हिम्स जो है वो संत लोगों ने लिखा था जो खुश थे, जो उनके हाथ में था उससे वो खुश रहते थे. Much of today's pragmatic Christian doctrines are based on you need more all the time. और उसके विपरीत आज के कई संदेश और आज के कई सीख इस प्रकार है कि आपको और चीजों की जरूरत है. और So the contentment factor is marred and distorted. और वहां पे जो संतुष्टता की जो बात है वो पूरी तरह से ना के बराबर I हुई. will come to godliness later, but today many people talk about godliness not with contentment, with discontentment. और आज के समय में भक्ति के बारे में लोग जो है संतुष्टता के साथ नहीं बोलते लेकिन वो असंतुष्ट होकर भक्ति के बारे में बात करते हैं. So this Christmas, this year, as you end this year and envisage on touching into the new year, God wants every one of you and me to become satisfied over what God has given और us. जैसे हम ये साल के अंत में आ रहे हैं और क्रिसमस का एक सीजन है, मैं कहता हूँ कि परमेश्वर हम सब से चाहते हैं कि हम सब संतुष्ट रहे. Be satisfied with yourself first. जो आप हो उससे आप खुश रहे. Hey, you know what? Your body was created by God. आप जानते हैं कि आपका शरीर जो है परमेश्वर से बनाया गया था. God decided your height, your weight, your skin color and your hair. और परमेश्वर ने आपके हाइट को, आपके बाल को, आपके शरीर के भिन्न भिन्न चीजों को जो है परमेश्वर ने डिसाइड किया था. If you want to have a bit of fun and translate your straight hair into a curly hair or your curly hair into a straight hair, that's okay. अगर आप खुश होना चाहते हैं और थोड़ा अपने जो है बॉडी में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो वो ठीक है. But don't do that
because you are not satisfied with the hair that God has given you. लेकिन वो चीज को इसके लिए नहीं कीजिएगा कि आप उस चीज से संतुष्ट नहीं है। Well, I don't know why I'm talking very practical today, because I am a theologian and I love to get into theology and histories and stuff. But I think this is what the Lord wants us to hear today. मैं प्रैक्टिकल चीजों को आज आपके सामने क्यों बांट रहा हूँ ये जानता, क्योंकि मैं एक थियोलॉजियन हूँ और हमेशा थियोलॉजी में बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहती है। Be satisfied with your body. आपके शरीर से आप असंतुष्ट रहते हैं। When God commanded all the creatures by His word, it was the body that He molded with His hands. और जब सब अपने शब्द के द्वारा रचा गया, उन्होंने जो शरीर को जो है अपने हाथों से रचाया था। So be satisfied with your body. इसीलिए आप अपने शरीर से संतुष्ट रहे। Be satisfied with your height and your weight. आप अपने हाइट और अपने वेट से संतुष्ट रहिए। Lose weight, that's something else, and health reasons. But many people are dissatisfied, and that's why when you look at the world, people are even changing their sexes. आप अपने वेट को कम करने के लिए जो है, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आज जो है अपने जो है जेंडर को चेंज करने के लिए लोग जो है उत्सुक रह रहे हैं। Many people say, many girls say, I wish I were a boy. Many boys, I wish I were a girl. Why? बहुत लड़कियां कहते हैं कि मैं विश करता हूँ कि मैं एक लड़का होता, और लड़के लोग कहते हैं कि मैं एक लड़की होता। Are you better than God? क्या आप परमेश्वर से भी बेहतर है? God could have given you a different body, और परमेश्वर आपको दूसरी एक शरीर को दे सकते थे, but it was He who deemed your body important enough to create your body the way it has been created. और परमेश्वर ने ये सही जाना कि आपका शरीर इस प्रकार हो, और इसीलिए आपको इस प्रकार रचा। Be satisfied. उसमें संतुष्ट रहिए। Be satisfied with your parents. आप अपने माता पिता से संतुष्ट रहिए। Many kids are dissatisfied that they are born to Asian, Indian, Sri Lankan, African parents. और कई बच्चे जो है बहुत ही दुखी है क्योंकि वो एशियन और इंडियन या श्रीलंकन पेरेंट्स को जन्मे थे। I wish my parents were Kiwis. और वो लोग कहेंगे कि मैं विश करता हूँ कि मेरे पेरेंट्स जो है वो किवीज रहते। I wish I was born in America to some white families. मैं चाहता हूँ कि मैं एक गोरे परिवार में जन्म लेता। Be satisfied with your parents. It was God who gave you to your parents. आप अपने माता पिता से हमेशा खुश रहिए, क्योंकि वो माता पिता जो है उनको आपको परमेश्वर ने दिया है। And be satisfied with your children. आप अपने बच्चों से खुश रहिए। Don't compare your children with other children. आप अपने बच्चों को दूसरे के बच्चों के साथ कभी कंपेयर न कीजिए। I see many parents, compare their children. They say, hey, look at that child and behave like that child. Always the sense of comparison. मैंने कई माता पिताओं को देखा है कि वो अपने बच्चों को देखकर गए, वो बच्चे को देख उसको देख के कुछ। Be satisfied with your children and be satisfied with your intellect. आप अपने बच्चों से संतुष्ट रहिए, और आपकी दिमागी जो लेवल है उससे आप संतुष्ट रहिए। Don't try to overdo things, overlearn things that are above the capacity of your brain. कुछ चीजों को जो है ओवरडू करने की कोशिश ना कीजिए, या कुछ चीजों को प्राप्त करने की कोशिश ना कीजिए जो आपके पहुंच से बाहर है। Be satisfied with the house that God has given you to live in. जो मकान आपको परमेश्वर ने दिया है, आप उससे खुश रहिए। Oh, I wish I had a better house. आप सोचेंगे कि मैं विश करता हूँ कि मेरे पास एक अच्छा बेहतरीन घर होता। I wish I had a bigger house. मैं चाहता था कि मैं एक अच्छा बड़े घर में रहता। Be satisfied. I mean, I can go on and on and on. और मैं वहाँ पे बहुत बहुत आगे जा सकता हूँ। Now let me tell you this. लेकिन एक चीज आपकी बात बताता हूँ। Say you invite somebody important to your home, right? आप कोई मुख्य व्यक्ति को अपने घर में इनवाइट करते हो। Pastor, you are having a gala time, aren't you? You are having a multilingual, multicultural people. You can have Malayalam food this Tuesday, Tamil food next Tuesday. I wish I had a congregation like that. मैं विश करता हूँ कि मैं यहाँ के पासवान के समान होता था कि वो एक ट्यूसडे को मलयालम फूड खा सकते हैं, वेडनेसडे को तमिल फूड खा सकते हैं वैसे। Okay, now you invite pastor to your home and you treat him with some food of yours, right? और ऐसा सोचिए कि आप पासवान को जो है अपने घर में बुलाते हो और उनको कुछ भोजन देते हो। Now when you see that he is enjoying, appreciating and tasting one particular dish over and above the others, won't you serve him more of that? और अगर आप देखते हैं कि वो पासवान जी एक डिश से ज्यादा खुश है और वो उनको ज्यादा पसंद आ रहा है, तो आप उनको वो डिश को ज्यादा उन पे जो है परोसना शुरू करेंगे। Even if he doesn't ask.
अगर वो पूछे नहीं तो भी आप उनको जबरदस्ती दोगे। That's the same with the contentment issue. और वही होता है संतुष्टता के बारे में। If we count our blessings and if we start appreciating what we have, the Lord will give us more. अगर आप अपने आशीषों को गिनना शुरू करेंगे, उसमें संतुष्ट होने की कोशिश करेंगे, तब परमेश्वर जाकर के उसको आप बढ़ाता रहेगा। I'm not against asking because the Bible says, ask, it shall be given unto you. मैं आपके जो है याद करने या फिर पूछने से खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि वचन ही कहता है कि पूछो तो तुम्हें मिलेगा। But appreciating what you have is much more efficient and powerful than asking. लेकिन जो चीज हाथ में है उससे संतुष्ट रहना वो जो है मांगने से भी बहुत बेहतर है। You know, when we give gifts to people, there is one particular family, my wife and I always enjoy them appreciating what we give them. और जब आप किसी को भेंट देते हो, हमारा परिवार जो है एक व्यक्ति को जो है भेंट देने में बहुत खुश हो जाते हैं। Everyone who receives says thanks. और सभी लोग कहते हैं थैंक्स। But this particular family, when we give something, they just receive it and they just enjoy it. They get overexcited to the extent where we want to give them more. लेकिन एक परिवार है, जब उनको हम भेंट देते हैं वो उस चीज को खोलते हैं, उसको आजमाते हैं और बहुत ही जो है खुशी से उसको एक्सेप्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि उनको बार बार हम गिफ्ट दें। So my dear friends, from now on, start looking around, looking at yourself, looking at your house, looking at your church, and start enjoying and appreciating what the Lord has given you. इसलिए मित्रों, आज से जो है आप अपने आप में देखिए, आपके कलीसिया में देखिए, आपके दोस्तों में देखिए और उन चीजों को जो है संतुष्ट रहने की कोशिश कीजिए जो परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया है। Even those of you who serve God, be content with what God has given you. Be happy for the church that God has given you. अगर आप परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हो, जो कलीसिया में आप भागीदार हो, उसमें आप संतुष्ट रहने की कोशिश कीजिए। Now let's talk about godliness. और अब भक्ति के बारे में हम बात If करेंगे। you refer to theologians and scholars, they would have different definitions for godliness, and all of them are right. और आप अगर पंडित लोगों के बारे में पूछेंगे और उनसे इसके बारे में ज्यादा पूछताछ करेंगे तो सभी का जो है कहना सही है। But I want to take you one step further. लेकिन आपको एक कदम आगे लेके जाना चाहूंगा। Godliness begins with we believing in God. और भक्ति की शुरुआत तब होती है जब हम परमेश्वर पे जो है अपने आस करते हैं। But it has to grow to the extent where God starts to believe in us. लेकिन उसको उस स्तर तक पहुंचना है जहां पर परमेश्वर का भरोसा हम पर होने लगता है। That's trust. और उसको हम भरोसा कहते हैं। We trust God because He is trustworthy. हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं क्योंकि वो भरोसेमंद है। But what has God told about man? Trust not the one who has breath in his nostrils. और जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके भी जो है नॉस्ट्रिल्स में श्वास है उन पे विश्वास ना करो। But we have to grow in God and His word to the extent where God begins to trust us. और हमारा जो विश्वास जो है परमेश्वर के वचन में उस स्तर तक बढ़ना चाहिए जहां पर परमेश्वर हमारे ऊपर भरोसा रखने शुरू करते हैं। I want to enlighten you on the things that God has already trusted you. और मैं आपको उस तरफ ले जाना चाहूंगा कि जिस चीजों में परमेश्वर ने आपको भरोसेमंद समझा है और उसको आपके हाथों में दिया है। Look at the Bible, my dear friends, how God trusted His people. परमेश्वर ने किस प्रकार अपने लोगों पर भरोसा किया। When God told Abraham, hey, you leave your father's house, leave your land, leave your kindred and go to a place where I will show you, God trusted that this man would obey. जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तुम अपने परिवार को छोड़ो, अपने करीब के लोगों को छोड़ो और उस देश पे जाओ जहां मैं तुम्हें ले जाता हूं, वहां पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो है इब्राहिम पर भरोसा किया। And when God told Abraham, take your only son and sacrifice him, God trusted Abraham to obey him. और जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि अपने इकलौते पुत्र को जाकर मुझे मेरे लिए बलिदान करो, तब परमेश्वर ने जो है इब्राहिम पर भरोसा किया। When God met Moses and introduced himself saying, hey, I am that I am, and I want you to go and deliver my people from Egypt, God trusted Moses. और जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं वो हूँ जो मैं हूँ और तुम जाकर अपने लोगों को जो है उसके मिस्र के जो है बंद से जो है बाहर निकालो, और उन्होंने जो है मूसा पर भरोसा किया। God trusted the 15 judges who rose to judge the land during a span of 230 years of the life of Israel. और वो तीन जो है वो जो 15 judges
230 years. और जो है 15 न्यायी को जो है 250 साल में जो है वहां पर न्याय करने के लिए रखा था, उन पर परमेश्वर ने भरोसा किया कि ये लोग जो है ये लोगों को चला सकते हैं। God trusted them. वहां पे परमेश्वर ने उन पर भरोसा किया। And God trusted David when he handed over the entire nation of Israel for him to rule. और वहां पर परमेश्वर ने दाऊद पर भरोसा किया, जब दाऊद के हाथों में जो है परमेश्वर के जन को चलाने के लिए जो है राजा कर नियुक्त किया गया। And God trusted Elijah when he said, you go and attack the prophets of Baal and Ashtaroth. परमेश्वर ने एलिया को जो है भरोसा किया जब उसने कहा कि अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए तुम निकल पड़ो। So we see the element of trust throughout the Bible. और वहां पे भरोसे के बारे में हम पूरे वचन में देखते हैं। And the same God who trusted all these people in the Bible trusts you. और वही परमेश्वर जो वचन में लिखे हुए व्यक्तियों से भरोसा किया, वही परमेश्वर जो है आज आपको भी भरोसा रखता है। The question is, are you trustworthy? सवाल ये है कि क्या आप भरोसेमंद हो। This, I think, is a very practical message. और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल संदेश है। And here are some questions that I am impelled to ask you. और यहाँ पे कुछ सवाल है मेरे दिल में जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। Husbands and wives. पति और पत्नी, I don't know why I am asking this, मैं नहीं जानता मैं क्यों पूछ रहा हूँ, but I think the Holy Spirit wants you to listen to this and respond to Him. लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है कि आप इस सवाल को सुनिएगा और जो है परमेश्वर को उत्तर दीजिएगा। Here is this question to all husbands and wives in this room. ये सवाल उन सारे पति पत्नियों को है जो इस यहाँ पर सुन रहे हैं। Could God have given your spouse a better partner than you? क्या आपको एक आपसे भी बेहतरीन एक पार्टनर परमेश्वर दे सकता था? I think the answer is yes. आप सोचेंगे यस। God could have given your wife a better husband than you. परमेश्वर आपके पत्नी को और एक आपसे भी बेहतर एक पति को दे सकते थे। And God could have given your husband a better wife than you. और परमेश्वर आपके पति को आपसे भी बेहतरीन एक पत्नी को दे सकते थे। But He gave you as the spouse to your partner, trusting you to look after your partner in the way He wants you लेकिन to look after परमेश्वर ने that person. आपको वो पति और वो पत्नी दिया इसके कारण कि उन्होंने आप पर भरोसा किया कि आप उनके इच्छा के अनुसार उस पति या पत्नी को संभाल सकते हैं। But what happens during arguments? लेकिन जब झगड़े होते हैं तब क्या होता है? We tend to say to our partner, I am too good for you. और तभी हम अपने पत्नी या पति से कहना लगते हैं कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा हूँ, You are useless. आप कोई भी काम के नहीं हो। Look at the world today. आप आज दुनिया में देखिए, The rate of divorce is constantly on high, even among born again Christians. और डिवोर्स का रेट जो है आज बहुत ही बढ़ रहा है और वो मसीही लोगों के बीच में भी बढ़ रहा है। They may have all the reasons under the sun, but I'll tell you, the only core reason is, I am too good for you. और उनके पास कहने के लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उनका एक कारण ये है कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा हूँ। That is self-glorification. वो अपने आप को बढ़ावा देते हैं। Whereas the truth is, God could have given your spouse a better partner, but God gave you because He trusted you. लेकिन सच्चाई ये है कि आपके पार्टनर को आपसे भी बेहतर एक व्यक्ति मिल सकता था, लेकिन परमेश्वर ने आप पर भरोसा किया और आपको जो है उस पार्टनर को दिया। So from today, you tell God, Lord, you have trusted me to be a good partner to my spouse. I will be. और आज से आप प्रार्थना इस प्रकार कीजिए कि परमेश्वर आपने मुझ पर भरोसा किया और आपने मुझे अपने पार्टनर को दिया एक स्पाउस के तौर पर। And Christian parents, I'm asking you a question. और मसीह माता पिता, आपसे एक सवाल मैं पूछता हूँ, God could have given your children to better parents than you who are out there. आपके बच्चों को जो है परमेश्वर आपसे भी बेहतरीन माता पिता को दे सकते थे जो बाहर है। There are better parents, much more elite, educated, rich than you. आपसे भी बेहतरीन पढ़े लिखे अमीर माता पिता है दुनिया में। But the reason why the Lord gave you your children is because He trusted you to bring them in the way He wants you to bring लेकिन them. आपको उस बच्चे को आपके हाथों में इसलिए दिया कि क्योंकि परमेश्वर ने आप पर भरोसा किया कि आप इन बच्चों को उनके हिसाब के कारण उनको आगे बढ़ा सकते हैं। Appreciate His trust. आप परमेश्वर के भरोसा को जो है आदर कीजिएगा। And the talents and abilities, I see musicians here
technicians, cameramen, sound operators, and many of you have a lot of endowments, talents, and gifts. और जो यहाँ पर इस कलीसिया में, इस कमरे के अंदर मैं बहुत सारे टैलेंट्स को देख सकता हूँ जो परमेश्वर ने दिया है भेंट के समान. And God gave you because He trusts you to be good stewards of your gifts. और आपको ये सब गुण परमेश्वर ने इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने आप पर भरोसा किया कि ये सारे गुण आप परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोगित करने वाले हो. But what do we see in the Christian world? Let's talk about the Christian world. लेकिन मसीही दुनिया में हम क्या देखते हैं? When God endows somebody with a musical gift, they sing songs to make money and become famous. और जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को जो है कोई भेंट देता है, हो सकता है म्यूजिकल भेंट देता हो, और हम देखते हैं कि वो व्यक्ति फिर दुनिया में जाकर जो है दुनिया के हिसाब से उस भेंट को उपयोग करना शुरू करता है. How do you detect these people? आप ऐसे लोगों को कैसे जान सकते हैं? Try using their songs. आप उनके गाने को गा सकते हैं. They want money. They copyright these things. वो चीजों को कॉपीराइट करते हैं ताकि उसमें से वो पैसा बना सकते Lo हैं. and behold, many preachers copyright their sermons. Or- Boy, can you believe this? और कई प्रचारक लोग जो है अपने संदेश को जो है कॉपीराइट करते हैं ताकि वो कोई और उपयोग ना करे. He is preaching my sermon, they say. और आप कहते हैं कि वो व्यक्ति मेरे संदेश को प्रचार कर रहा है. My sermon? आपका संदेश? Excuse me, who preaches? संदेश कौन देता है? को प्रचार कौन करता है? The Holy Spirit. पवित्र आत्मा बात करती है. The person is just a tool used by the Holy Spirit. और वो प्रचारक वहां पे सिर्फ एक माध्यम के तौर पर खड़े रहता है जो प्रचार करने लगता है. And today many people are using their gifts, their abilities and their endowments for their own gain and benefit over and above God's glorification. आज कई लोग अपने भेंट को जो है अपने फायदे के लिए और अपने नाम को रोशन करने के लिए जो है उपयोगित करते हैं, बावजूद जो परमेश्वर के नाम के ऊंचा करने के बाद. Now on and on and on and on, look at yourselves to see how many things God has blessed you with. आप अपने जीवन में ही देखिए कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आपको किन किन चीजों से आशीषित किया है. Today I am shocked to see how when some people are given the gift of healing, they charge money to exercise those gifts. और मैं आज चौकन रहता हूँ जब परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को जो है छुटकारा या फिर हीलिंग करने की जो मिनिस्ट्री दी है और जब उसके लिए आप पैसा चार्ज करने लगते हैं. I am shocked to smithereens when I see some Sri Lankan pastors who are truly gifted by God, by the way. They have a price list. और मैं चौकन रहता हूँ जब परमेश्वर के दास जो परमेश्वर से अभिषिक्त लोग हैं वो लोग जो है अपने प्राइस लिस्ट को सेट करते हैं. You got to pay me so much if I am to come and pray. But if you come and pray from me, there is a discount. और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पास आकर आपके लिए प्रार्थना करूं तो मेरा चार्ज डिफरेंट है. अगर आप मेरे पास आते हो तो उसका कुछ डिस्काउंट हो सकता है. God has given you anything and everything that He has given you because He trusts you. परमेश्वर ने जो भी कुछ आपके हाथों में दिया है इसलिए दिया है क्योंकि वो आज आप पर भरोसा करते हैं. And the highest level of godliness is when we can stand before Him saying, Yes, Lord, I am trustworthy. और वो भक्ति का ऊंचा स्तर तब होता है जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होते हो और कहते हो कि परमेश्वर मैं आपके लिए भरोसेमंद हूँ. So let me remind you, my dear friends, godliness is not us trusting God or us believing God. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भक्ति ये नहीं है कि आप परमेश्वर पे भरोसा करते हो. That's just the beginning. वो सिर्फ शुरुआत है. Godliness takes us through the word on which we grow. और भक्ति जो है परमेश्वर के वचन पे हमें खड़ा करता है और वहां पे हमें बढ़ाता है. And we come to a point where God says, You are my trustworthy servant. और आप उस स्तर तक पहुंचते हो जब परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे भरोसेमंद जो है सेवक हो. That's what Jesus says. Finally, when the people brought the talents, और जब वही यीशु मसीह कहता है कि जब लोग टैलेंट्स लेकर जो है यीशु मसीह के सामने आ रहे थे, good, well done, my good and faithful servant. और कहते हैं कि तुमने अच्छा किया है, तुम जो है विश्वास योग्य सेवक हो. So my dear friends, God spoke to us two things today. आज के सवेरे के समय परमेश्वर ने हमसे दो बातें की. Number one, we need to start living a life of satisfaction.
पहली बात जो है हमें जो है जिंदगी संतुष्टता के साथ जीना है। I'm not saying don't pray for things. No, I'm not saying that. But start appreciating what the Lord has given us. ये नहीं कह रहा आपके जीवन में जो जरूरत है उसके लिए आप प्रार्थना करना बंद कीजिएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो आपके हाथों में है उसके लिए आप संतुष्ट रहने की कोशिश The कीजिए। Bible says, my God shall supply all my needs according to his riches in glory. और वचन कहता है कि मैं तुम्हारे सारी जरूरतों को जो है मेरे रिचेस मेरे हिसाब से जो है तुम्हें आशीषित करूंगा। It doesn't say, my God shall supply all my wants. वो ये नहीं कहते कि आप जो भी चाहते हो उसको परमेश्वर आपके चाहों को पूरा करेगा। But people have translated many wants into needs today. लेकिन लोगों ने जो है कई चीज जो उनको चाहिए थी उसको जो है अपने जरूरत के तौर पर उसको बदला है। One of the reasons is because they don't appreciate what they have. वो इसके कारण होता है कि जो उनके हाथ में है उससे संतुष्ट नहीं है। The reason as to why they don't appreciate is because they don't see. वो इस बारे में जो है उस चीज से संतुष्ट नहीं है क्योंकि वो देखते नहीं है। The reason why they don't see is because they don't look. और वो देखते क्यों नहीं? क्योंकि उनके सामने है वो, लेकिन वो उसको देखते नहीं। From now on, my dear friends, let's start to look अब से जो है हम उस चीजों को देखना शुरू करें at the things that the Lord has given us. जो भी परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया है। That was the song you sang. Count your blessings. और वही गीता जो बहन ने गाया, Name them one by one. एक एक को गिन गिन कर जो है उसको धन्यवाद। Then you will be shocked to smithereens to see, ooh, look at me, I am blessed. और तब तुम चौकन्न हो जाओगे कि अरे मैं इतना आशीषित हूँ। And with that satisfaction, if we grow to the level where we can be trustworthy to God, that's great gain, my dear friends. और वो संतुष्टता से जब आप आगे बढ़ते रहते हो और परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम मेरे विश्वास योग्य व्यक्ति हो, तो वो सबसे खुशी की बात है। Shall we all close our eyes, please? क्या हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे? Please close your eyes, everybody. अपने आंखों को बंद I करें। don't want you to open your eyes because I'm going to ask people to put their hands up. I don't want you to see who is putting their hands up. मैं ये आपको आंख बंद करने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग अपने हाथों को ऊपर करेंगे जो प्रार्थना चाहते हैं। May I ask a few questions from you and then I will pray for you. मैं कुछ सवाल को आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। How many of you all say, yes, I realize that I have not been living a life of satisfaction. आप में से कितने लोग ये कह सकते हैं कि मैं एक ऐसी जिंदगी को जी नहीं रहा था जहां पर मैं संतुष्ट था And I want to repent. और मैं आज मन फिराना चाहता हूँ। Dissatisfaction is not a sin, असंतुष्टता एक पाप नहीं है, but we need to repent from it, लेकिन हमें उससे हमारा मन को फिराना है, or else we cannot start a life of satisfaction. या फिर हम संतुष्टता की जिंदगी को कभी शुरू नहीं कर सकते। So my first question is this. मेरा पहला सवाल ये है, Put your hand up and down if you think you are not living a life of satisfaction. अपने हाथों को ऊपर कीजिएगा अगर आप ये विश्वास करते हैं कि आप एक संतुष्ट जीवन को नहीं जी रहे हैं। In other words, if you feel like I need more, I need more, I need more. अगर आपको आज भी लग रहा है कि मुझे और चाहिए, मुझे और जरूरत है। Thank you very much. And my next question is, और मेरा अगला सवाल ये है, how many of you all want to decide that from today onwards, I will start appreciating the things that God has given me? और आज से कितने लोग जो है अपने हाथों को ऊपर करेंगे, वो कहेंगे कि जो भी मेरे पास है उससे मैं संतुष्ट रहूंगा और मैं उसको अप्रिशिएट करना शुरू करूंगा। Thank you. You can just put your hand up and down quick because I don't want anybody else to see. Okay, I have two more questions. और मेरे पास और दो सवाल हैं। How many of you all have not been trustworthy with the things God has given you? आप में से कितने लोग हैं जो आज भी भरोसेमंद नहीं है जो भी चीज परमेश्वर ने आपके हाथों में सौंपा है उस चीजों से? How many of you all have told your husband or your wife, I'm too good for you? आप में से कितने लोगों ने अपने पति या पत्नी से कहा है कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा हूँ? How many of you all have told your children or your parents, I'm too good for you? आप में से कितने लोगों ने अपने माता पिता से, आपने अपने बच्चों से कहा है कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा हूँ? How many of you all have felt, I deserve a better church than the church that God has given me? आपने कितने लोग जो है ये सोचते हैं कि मुझे इस कलीसिया भी बेहतरीन कलीसिया जो है मेरे लिए योग्य है? And how many of you all say, commonly, I always have not appreciated the trust God has given me? और कितने लोग कह सकते हैं कि जो क्रूस आपने मेरे लिए दिया था उससे मैं जो है संतुष्ट नहीं हूँ? Okay, my final question today is, how many of you all want to repent and submit to this verse
that the Lord has given us. और मैं ये आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग जो है इस जो वचन को हमने पढ़ा उसको समर्पित कर कर अपने आप को जो है मन फिराने के लिए जो है सौंप सकते हो? Shall we please rise up to our feet? क्या आप अपने पैरों में खड़े हो सकते हैं? And I'm going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। Our most gracious, loving Heavenly Father, I come to you in the name of Jesus. प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं आपके हुजूरी में आता हूँ। Father, you saw the many hands that went up. आपने उन हाथों को देखा जो आपके हुजूरी में जो है उन्होंने हाथ उठाया था। Thank you, Lord, for speaking to us this practical message. परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये जो प्रैक्टिकल संदेश आपने हमारे बीच में बात किया, We have known this right through our lives, Lord. और ये पूरी जिंदगी में हम ये चीज को जानते थे, But we may have not appreciated these things in our lives. लेकिन हमने ये चीजों को कभी अप्रिशिएट करने की कोशिश नहीं की। And today you have spoken. और आज आपने बात की है। Lord, I pray that you would bless each and every one of us in this church. परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को आप आशीषित करेंगे, कलीसिया के सारे लोगों को। We thank you for blessing us with innumerable, immense blessings, Lord. और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें आशीषित किया है वो अनंत काल की चीजों से। Lord, you have blessed us spiritually, emotionally, physically, financially, and materially. हमें सभी रीति पे, सभी स्तर पर आपने हमें आशीषित किया, इसलिए आपकी धन्यवाद करते हैं। Help us to appreciate your blessings upon our lives. परमेश्वर, जो भी आशीष आपने हमारे जीवन में दिया है उसको अप्रिशिएट करने के लिए हमें मदद And Lord, कीजिए। I thank you for wanting to trust us, Lord. परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने हम पर भरोसा किया है। As much as we are untrustworthy, you are so magnanimous to trust us, Master. जितने भी हम भरोसेमंद नहीं थे, लेकिन आपने फिर भी हम पर भरोसा किया परमेश्वर। So Lord, I pray that you would help us to become trustworthy to you. इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आप हमें मदद कीजिएगा कि हम विश्वास योग्य और भरोसेमंद बने। Lord, may we realize the wonderful responsibilities that you've given us in the family, in our workplaces, in our church, and in this world. परमेश्वर, हम समझ नहीं पाए कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, इस दुनिया में आपने हमारे हाथों में सौंपा है। All we want to hear at the end of the day from you is, well done, my good and faithful servant. परमेश्वर, हम सब चाहते हैं कि वो अंतिम के दिन परमेश्वर हम सब ये बात को सुने कि मेरे विश्वास योग्य और अच्छे सामर्थी जो है सेवक। Bless us, Lord, accordingly. हम सबको उसी के अनुसार आशीषित कीजिएगा। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank you. You may be seated and God bless you.